So hello everyone, today we will be discussing the lower limb, the muscles and the nerve supply of the lower limb. Specifically we are going to discuss the thigh in this lecture. Okay. Now thigh एक important topic है, keeping in mind the viva point of view, और इस lecture में के अंदर मैं आपको सिर्फ muscles और उनका nerve supply समझाने वाली हूँ ताकि जब हम लोग उसको आंसर करें हमसे पूछा जाए so we are able to answer the question. So thigh को मैंने ना कुछ इस तरीके से divide किया. It is divided into 3 compartments. The anterior compartment, the middle compartment and the posterior most compartment. Okay. Now, first of all, we will be discussing the anterior compartment of the thigh. So, there are majorly 5 muscles of the anterior compartment of the thigh, which include sartorius, rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis and vastus intermedius. ठीक है. Now the muscle of the anterior compartment, the nerve supply of the anterior compartment is the femoral nerve. So उसमें भी anterior division of the femoral nerve supplies the sartorius and the posterior division of the femoral nerve supplies the other 4 muscles which together form the quadriceps femoris. Now इनका जो इंसर्शन है वो पटेला के ऊपर रहता है, जो इस तरीके से मैंने बनाया. दिस इज फॉर एग्जांपल, दिस इज द लैटरल पार्ट, दिस इज द मिडिल पार्ट. सो वी हैव वास्टस लैटरालिस, वास्टस मीडियस, रेक्टस फिमोरिस एंड वास्टस इंटरमीडियस. सो दे ऑल हैव द पटेलार अरेंजमेंट. नाउ सार्टोरियस जो है ये हमारे पास ऑन द मीडियल surface of tibia पे अटैच होता है along with the Guy's rope. Now Guy's rope is basically formed by the sartorius, semitendinosus एंड ग्रेशियालिस. और इसकी खासियत क्या है, जैसे मान लो दिस इज द पेल्विस. ठीक है, तो ये पेल्विस के हर एक कोने को अटैच करवाता है और स्टेबिलिटी देता है, टिबिया पे अटैच करवाता है और स्टेबिलिटी देता है. इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये पेल्विस को स्टेबलाइज कर रहा है. नाउ हेयर इज अ डायग्राम जो कि आई फाइंड आई थॉट कि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. So here you can see this is the iliacus muscle. This long muscle is the sartorius which is also called as the honeymoon muscle. इसको हम लोग honeymoon muscle भी कहते हैं. ठीक है, specifically because of its function. Then we have our gracialis जो कि medial most है यहाँ पे, vastus medialis, vastus lateralis and rectus femoris. और इसके नीचे हमारे पास vastus intermedius रहेगी. ठीक है, so this was the muscles of the anterior compartment of the thigh. Now talking about the muscles of the medial compartment of the thigh, जिसका जो नर्व सप्लाई है वो ऑब्चुरेटर नर्व है. सो इसके अंदर हम लोग मेजरली इसको सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट एंड डीप मसल्स में पढ़ते हैं. सुपरफिशियल में हमारे पास है पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस एंड ग्रेशियालिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटीरेपिस मसल. माइंडेड द फंक्शन ऑफ ग्रेशियालिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द फंक्शन ऑफ sartorius that we studied above. Okay, now the nerve supply, we have the superficial muscles are supplied by the anterior division of the obturator nerve. The intermediate muscle group is supplied by the posterior division, जिसमें से the adductor brevis is a composite muscle because it is not exactly composite बोलना चाहिए because it is sometimes supplied by the anterior and sometimes it is supplied by the posterior. लेकिन अगर एक बॉडी में anterior तो anterior ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि at the same time दोनों से supplied हो रहा है. So I guess composite is not the right word to explain this muscle क्योंकि it depends upon person to person. Okay, now deep muscle में we have adductor magnus which is supplied by the posterior division of the obturator nerve. adductor magnus में एक hamstring part भी रहता है जो कि posterior compartment में आता है. Okay, now this is femur and ये जो muscles of the medial compartment है इनका femur पे कैसे attachment है मैंने वो बताया. सो वी हैव सबसे मीडियल में वास्टस मीडियालिस जो कि लीनिया एस्पेरा के जो लिप्स है उसके बाहर है एंड लैटरल में है वास्टस लैटरालिस. इसके बाद ये जो देख रहे हो ये है एडक्टर मैग्नस जो कि एडक्टर ट्यूबरकल के ऊपर जाके अटैच होता है, एडक्टर ट्यूबरकल. ठीक है, दिस इज एडक्टर लॉन्गस एंड दिस इज एडक्टर ब्रेविस और ये लेसर ट्यूबरकल से निकलती हुई है पेक्टिनियस. ओके, और ग्रेशियालिस जो है वो हमारे पास थोड़ी सी उसकी अटैचमेंट जो है मीडियली अटैच्ड है जो कि हमारे पास जो प्यूबिक का रेमा रहता है वहाँ से निकलती हुई है. ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द मसल. आप इसको एक इजी डायग्राम से समझ सकते हो जैसे मैंने इसको समझा है. ये मैंने ऐसे थाई बनाई है, ये पेक्टिनियस है, ये ग्रेशियालिस है, ये एडक्टर लॉन्गस है. पेक्टिनियस, ग्रेशियालिस, एडक्टर लॉन्गस, बीच में है हमारे पास एडक्टर ब्रेविस, यहाँ पे ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस एंड ये है एडक्टर मैग्नस. एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस. ठीक है, तो वो जो नर्व सप्लाई वाली बात है, एक तो नर्व सप्लाई डायरेक्टली इसके बीच से जा रहा है. ये कौन सा डिवीजन है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व.
और एक जो है वो ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस को पियर्स करते हुए पीछे से निकलती है। दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुलेटर नर्व। तो कुछ इस तरीके से भी आप मीडियल कंपार्टमेंट को समझ सकते हो। ओके, नाउ देयर इज अ डायग्राम। मैं डायग्राम जरूर लेकर आई हूँ बिकॉज डायग्राम्स हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज ऑब्चुलेटर एक्सटर्नस, एज यू कैन से ये कहाँ पे अटैच होता है, इट अटैचेज ऑन टू द ट्रोक्रांटिक फोसा। ठीक है, देन वी हैव दिस इज द एडक्टर ब्रेविस, बीच में जो ये वाली है मसल, दिस इज द एडक्टर लॉन्गस एंड दिस इज एडक्टर मैग्नस। ठीक है, और ये जो देख रहे हो दिस इज हाइएटस मैग्नस, जिसमें से हमारे पास फिमोरल आर्टरी निकलती है और बनाती है पॉप्लिटियल आर्टरी। Now this is all about the middle compartment of the thigh. Talking about the muscles of the posterior compartment of the thigh, we have very important muscles. Posterior compartment में पहले इसका क्राइटेरिया देख लो कि posterior compartment की muscles को hamstrings बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? इसका ओरिजिन जो है वो ischial tuberosity से है और इसका जो इंसर्शन है वो आइदर टिबिया है या फिर फिब्यूला है। इसका नर्व सप्लाई है द टिबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व एंड इट्स एक्शन इज एक्सटेंशन एट द हिप जॉइंट। समझो यार, ये थाई का पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, ये थाई का पीछे वाला हिस्सा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये थाई को पीछे की तरफ खींचेगा, यानी कि एक्सटेंशन कॉज करेगा। लेकिन नी जॉइंट पे फ्लेक्शन कॉज करता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये नी जॉइंट पे आगे की तरफ अटैच होता है, तो उस वजह से वो यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्शन कॉज करता है। फ्लेक्शन इज बेसिकली जब दो एंगल्स करीब आ रहे हैं, एक्सटेंशन इज बेसिकली वो दूर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब सेमी, इसमें कौन सी मसल्स आती है? सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड एडक्टर मैग्नस। माइंडेड शॉर्ट हेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ हैमस्ट्रिंग बिकॉज इट अराइज फ्रॉम द लीनिया एस्पिरा। जो हमारा यहाँ पे रूल था, क्राइटेरिया था, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हैमस्ट्रिंग। ऑल्सो इट इज सप्लाइड बाय द कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व, दैट्स व्हाई वी डू नॉट कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ हैमस्ट्रिंग। वहीं पे एडक्टर मैग्नस का भी सेम सीन है। एडक्टर मैग्नस जो है वो कहीं ना कहीं एडक्टर ट्यूबरकल पे अटैच होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे एडक्टर ट्यूबरकल पे अटैच हो रहा है विच इज प्रेजेंट ऑन द फीमर। तो ये भी तो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे, स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ हैमस्ट्रिंग बिकॉज जो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट है, सॉरी हाँ, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट है विच बेसिकली you can say it adheres or it protects the knee joint, वो जो है इट इज डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस। तो कहीं ना कहीं वो टिबियल कोलैटरल लिगामेंट तो टिबिया भी अटैच है ना, तो वो उसका डीजेनरेटेड पार्ट रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एडक्टर मैग्नस इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ हैमस्ट्रिंग्स। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं। डीजेनरेटेड पार्ट्स ऑफ मसल, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट इज अ डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस, फिबुलर कोलैटरल लिगामेंट इज अ डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ पेरोनियस लॉन्गस, ऑब्लिक पॉप्लिटल लिगामेंट सेमी मेम्ब्रेनोसिस से बनता है, सैक्रोटिब्यूरोसिस लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स से, और सैक्रोस्पाइनस कॉकेजियस से बनता है। एंड हियर इज अनदर ब्यूटिफुल डायग्राम, लेट मी शो यू दिस। या दिस इज सेमी टेंडनोसिस। नाउ लुक, इसका टेंडन बड़ा है इसलिए इसको टेंडनोसिस बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग टेंडन। एंड ये है सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये है बाइसेप्स फिमोरिस का लॉन्ग हेड, ये है बाइसेप फिमोरिस का शॉर्ट हेड, और इसके ऊपर कवर करने, जो इसके ऊपर कवर करने वाली चीज़ है वो एडक्टर मैग्नस है, जिसको रिमूव कर दे तभी ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। नाउ वी हैव द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन एक बहुत ही ईजी पार्ट है, यू कैन सी दिस। दिस इज ग्लूटियस मैक्सिमस, दिस इज ग्लूटियस मीडियस एंड दिस इज ग्लूटियस मिनिमस। ठीक है, ये है पायरिफॉर्मिस, ये है सुपीरियर गेम्यूल, दिस इज ऑब्चुरेटर इंटर्नस, दिस इज इंफीरियर गेम्यूल एंड दिस इज क्वाड्रेटस फेमोरिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड व्हाट वी स्टडीड अबव, दैट इज क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। क्वाड्रिसेप्स चार हेड है इसके। क्वाड्रेटस मतलब ये क्वाड्रैंगुलर है, ओके। लर्न टू ब्रेक द वर्ड्स। Okay, so gluteus maximus is the chief extensor. It is supplied by the inferior gluteal nerve. Gluteus medius and minimus is supplied by the superior gluteal nerve, and it supports the pelvis when one foot is off the ground. कौन सी gluteus medius और minimus? तो यहाँ पे Trendelenburg sign आता है. Now there is a Trendelenburg test also. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong. So Trendelenburg test जो है, it is for the वेरिकोज वेन्स के लिए आता है, तो वो भी यू कैन स्टडी। ग्लूटियस मैक्सिमस का जो अटैचमेंट है 3/4 पार्ट इलियोटिबियल ट्रैक में है एंड 1/4 पार्ट इज ऑन द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। दिस इलियोटिबियल ट्रैक्ट इज नथिंग कि जो हमारा टेंसर फेशियल लैटा है, डीप फेशिया है, उसका लैटरल साइड पे वो थोड़ी थिक हो जाती है और वो बनाती है हमारे पास इलियोटिबियल ट्रैक्ट, जिसमें टेंसर फेशियल लैटा और ग्लूटियस मैक्सिमस जाके अटैच होती है।
ओके, नाउ यहाँ पे भी मैंने कुछ नर्व सप्लाई लिखा है. आई एम सॉरी इफ इट इज नॉट विजिबल वेल, बट आई विल टेल यू. पायरिफॉर्मस इज सप्लाइड बाय द वेंट्रल रेमाई ऑफ S1 S2. Superior gemule is supplied by the nerve to obturator internus. Obturator internus is supplied by nerve to obturator internus only. ऐसे याद रखो कि ये सिर्फ पायरिफॉर्मस है. ये दोनों मसल ऑब्चुरेटर इंटर्नस की ये दोनों मसल जो है वो ऑब्चुरेटर इंटर्नस की मसल से नर्व से सप्लाई होगा, और ये दोनों नर्व जो है यानी कि इन्फीरियर जेम्यूल और क्वाड्रेटस फिमोरिस, इट इज सप्लाइड बाय द नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस. ठीक है, तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे मेंशन करी हुई है. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द थाई, लेकिन मैं सोच रही थी कि ज़रा लंबार प्लेक्सस थोड़ा समझा देती हूँ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. सो T1 और T2 पार्ट्स है. T1 और T12 और L1 से जो हमारे पास ये डायरेक्टली नर्व्स निकलती है, दे जॉइन टू फॉर्म एंड दे फर्दर डिवाइड टू फॉर्म इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू टेल मी कि इलियो इंग्वाइनल हमने कहाँ पढ़ा था. और L2 की डायरेक्ट ब्रांच और T12 और L1 ब्रांच बनाते हैं जेनाइटोफिमोरल नर्व. ऑल्सो टेल मी वेयर यू स्टडी जेनाइटोफिमोरल नर्व. देन L2 की डॉर्सल डिवीजन और L4 की भी फर्दर डॉर्सल और वेंट्रल डिवीजन रहती है. डॉर्सल डिवीजन ऑफ L2, L3, L4 फॉर्म्स द femoral nerve. Ventral division of L2, L3, L4 forms the obturator nerve, and lateral cutaneous nerve of thigh is a separate nerve from the dorsal division of only L2 and 3. ठीक है, एंड देन L4 एंड L5 मिला के सेक्रल प्लेक्सस बनाते हैं. सो दिस इज द femoral nerve, एंड ये जो है ये ट्रंक है बेसिकली femoral nerve का, ये है ट्रंक जो कि फर्दर डिवाइडेड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ lateral circumflex femoral artery. Lateral circumflex femoral artery. It is a branch from the profunda femoris, which is a deep branch of the femoral artery. ये डिवाइड करती है into anterior and posterior division. Anterior डिवाइड करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था sartorius को, और दो cutaneous branches बनाता है, medial and intermediate. और posterior जो है वो 4 muscles को सप्लाई करता है. That is the sartorius, sorry not the sartorius, the quadriceps femoris जो हमने पढ़ा था उनको, और ये बनाते हैं saphenous nerve, and it also gives off an articular branch. So this was all about the thigh region. I have tried to explain you the muscles and the nerve supply of the muscles, and I hope it is helpful. It was of great help to you guys, and yeah, thank you so much for watching this video.